मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी इसको बड़ा स्लो चलाया है या 80-90 किलोमीटर पे। वी ऑल्सो राइड एट गुड स्पीड्स ऑन द हाईवे। अगर आप इस ऑयल को अगर एक ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं और इसको आप इस तरह से चेक करते हैं, ये देखिए अभी ये जो ग्रिप बन रहा है इस ऑयल के अंदर, बिल्कुल बन रहा है, मींस इट्स विस्कोसिटी इज एब्सोल्युटली फाइन। जब हमने बाइक ली थी तो ये आता था 24,000 का और ये आता था 21,000 का, और अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए तो सर। अब ये जो पेयर है वो अभी आता है 1 लाख रुपए का। बताओ। एक क्वेश्चन और सर, हार्ले में बैटरी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है जी। सब लोग बोलते हैं बैटरी ड्रेन होता है, तो उस चीज के लिए क्या सोल्यूशन है सर उस चीज का? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज जो सामने जो फ्रेम के अंदर बाइक देख रहे हो, ये हार्ले डेविडसन की डीलक्स है एंड बहुत कम लोगों ने ये बाइक देखी है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और पर्सनली मेरी फेवरेट बाइक है और ये सर की बाइक है। तो हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। तो सर से ऑनरशिप रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए, पूरी राइडिंग कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सर शेयर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता हार्ले कम्युनिटी के अंदर कोई ज़्यादा ऐसे लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि सर ने ये जो बाइक चला चुकी है समवेयर अराउंड 1,24,000। एम आई राइट सर? 1,25,000 now. Now. हाँ जी, and this motorcycle is a 2018 Deluxe. This is the first to ride. Okay. And I had picked it up on the day they introduced it. So this bike, I was the owner before they introduced it. Right. So it became first to ride. And on the Derby cover they have my हाँ, name. मैंने देखा सर अभी। Yeah. And my background, I'm a professional airline pilot. Okay. I fly the Boeing 777 अरे वाह सर। for Jet Airways. And so biking has become my passion. Okay. From 2017, I bought a Fat Bob. Okay. And within 4 months and a few days, I changed over to Deluxe. And the moment that I saw this motorcycle, I was so mesmerized that I just picked it up. अच्छा। And I did not even think about it. Okay. So I had 2 motorcycles for a very long time. Okay. It is a very, very nimble motorcycle with the new Milwaukee 107. 107 इंजन उस टाइम पे लॉन्च हुआ था ये। I have off-roaded with this motorcycle. Seriously? Yes, I have. And we were the first Harleys to go to a place called Razingla, Okay. which is on the Chinese border. Okay. Which we have recently done on a lay trip. So we did Thang, which is ahead of Turtuk, which is the Pakistan border. And from there we came back and went ahead of Pangong Lake to Razingla. So last 14 kilometers was in desert, stones and loose mud. And we did 18 water crossings on this. अच्छा। And I can assure you, if you ride well and you know your riding techniques, very few motorcycles will get hurt. बिल्कुल सर। Every motorcycle can, get off the road and do things. और क्रूजर्स को तो लोग वैसे भी लोग ले जाने में डरते हैं इतने बड़े हाई पास पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस नहीं रहता बाइक का। हाँ जी, तो ग्राउंड क्लियरेंस का जो इशू है, हमने इसमें क्या करा, इसमें 8 mm की एक हाँ, मैं जैसे देख पा रहा हूँ आपने शीट लगा रखी है, प्रॉपर शीट लगाई हुई है। हाँ, which is a straight sheet. अच्छा। What people do is they put a half sheet. हाँ, ये पूरी शीट है। Never put a half sheet because it will either cover your engine or it will cover your oil sump. And these are wet clutches. That means that the whole engine, the oil's there and the clutch moves in that. And the pan is on this side, so that is the thing which gets hurt the most. वो बहुत जल्दी टूट जाता है. And 7 liters of oil will drain out in a few seconds. बिल्कुल सच है। And you have to cancel your ride and stop it. But by God's grace, there has never been an incident or accident or any type of breakdown on this motorcycle. सर कोई ब्रेकडाउन नहीं, मतलब इतने सारे किलोमीटर के Zero अंदर? breakdown. And the reason for no breakdown is that all I've done is that I have serviced this motorcycle in time, in schedule. ओके। And अब मैंने इसका schedule बदल दिया है. अच्छा। Harley recommends कि after every 8,000 kilometers you service your motorcycle. But since this motorcycle now has been driven over 125, I mean 100 More than 1 lakh kilometers now, 1,25,000 kilometers. So I change the oil every 5,000 kilometers now. ओके, मतलब So that ये keeps- हार्ले रिकमेंड सर? हार्ले 8,000 पे करता है. अच्छा, ये आपके माइंड में कैसे आया कि हर 5,000 रुपये अब मैं चेंज करूं? मेरा इसलिए आया माइंड पे क्योंकि ऑयल के अंदर एक विस्कोसिटी होती है, जो उसके अंदर जो आप कहते हैं चिकनाहट होती बिल्कुल है, सर। उसको विस्कोसिटी कहते हैं. सो एज दिस इज अ वेरी ओल्ड स्ट्रेट लाइन टेक्नोलॉजी. बिल्कुल। सो इसमें क्या है, द हीटिंग इज वेरी हाई. हाँ। And these engines were not designed for very hot and high temperatures. So in India, when we ride and जब आप राइडर होते हैं तो आप गर्मी, बारिश, बर्फ किसी को नहीं देखते, आप जब राइड करना है तो करना है सर. तो इंडिया में 46 डिग्रीज 44 डिग्रीज हो जाता है. तो जब आप ट्रैफिक में रुकते हैं तो इंजन टेम्परेचर्स राइज अप वेरी रैपिडली. तो उससे क्या होता है, ऑयल का जो टेम्परेचर
होता है वो भी उतना जाता है और बिल्कुल। उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। सच है। तो ये जो पुराने अब ये बाइक का इंजन हो गया है, सो दैट्स व्हाई आई फील कि इसका ऑयल जितनी जल्दी रिसाइकिल करो तो उसमें वो चिकनाहट विस्कोसिटी उसकी रहेगी, रेगुलरली रहनी चाहिए। रेगुलर रहेगी। एंड इस मोटरसाइकिल में शी इज स्टिल ऑन द ओरिजिनल क्लच। एंड क्या बात करो सर, ओरिजिनल क्लच? ओरिजिनल क्लच मैंने इस बाइक में कुछ भी नहीं बदला। अच्छा। ना इंजन में कोई मॉडिफिकेशन है, ना इंजन में कोई नया स्पेयर पार्ट डला है, ना इसका कभी क्लच को हाथ लगाया है। ये जैसे बाइक मैंने शोरूम से ली थी, इसमें सिर्फ मैंने एक ये विंडशील्ड लगाई है। Windshield is a must for cruisers. बिल्कुल। And why I say this is for two reasons. First reason is that when you ride long distances, और जो हम long distance बात करते हैं, तो अपना हम जाते हैं एक लेग में अबाउट 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर। तो उसमें क्या होता है कि आप जब चला रहे होते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चेस्ट। सो व्हेन अ राइडर इज सिटिंग स्ट्रेट तो उसका पोस्चर आगे की तरफ होता है। सो देन यू आर एक्चुअली फाइटिंग टू सिट स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, यू नो, and you're trying to move forward. Sorry, I said it the other way around. So you have to move forward. So what happens is that at the lower back, your pain starts. Okay, अच्छा, ये भी एक रीजन है सर लोअर बैक पेन होने का। And the lower back your pain starts because you're trying to move forward against the wind to hold straight. And the second thing is you hold your handle very lightly. But when you have a very strong headwind, when you're doing about in the high speed regime 80, 100, 110, so your grip of the handle also becomes stronger. Okay. So if the road is wobbling, अगर वो रोड में जैसे काट देते हैं सरफेस तो रोड वॉबल करती है, तो आपका ग्रिप हमेशा लाइट होना चाहिए क्योंकि पिछला टायर उसको निकालता है। लेकिन अगर आपने उसको कराया तो आप करेंगे आपका बहुत ज्यादा वॉबल आएगा उसमें, you know. So that is a very big problem. Okay. So windshield protects you against that. That's one. Second, it protects you against all sorts of bugs, mosquitoes. बिल्कुल। और दूसरा क्या है, तीसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल ये जो है काइट्स जो पतंगे उड़ाते हैं, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, तो इसमें जगलरी कॉर्ड से 2 राइडर्स की डेथ भी हुई है। हाँ सर बिल्कुल हुई है। एंड व्हाट इट डज इज व्हेन यू आर राइडिंग, आपकी हेलमेट यहाँ तक आई होती है इस लेवल पे। सो इफ यू हैव टू गो थ्रू एनी केबल और कॉर्ड और समथिंग, फर्स्ट थिंग इट हिट्स द स्क्रीन and then it has a tendency of rising up, so you have time to react क्योंकि आप उस स्पीड पे इतनी जल्दी जब तक देखते हैं ब्रेक नहीं लगा सकते, तो ये उससे प्रोटेक्ट करती है। तो विंड स्क्रीन इज द मस्ट। फिर मैंने इसमें ये फॉग लाइट्स लगाई थी। दिस फॉग लाइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सर, जीआर की लगी हुई है। पीपल यूज दिस इन अ वेरी बैड वे। दे यूज इट इन द मॉर्निंग टाइम and it becomes so bright that the person in front gets very irritated and annoyed, and there have been cases in Madhya Pradesh and Rajasthan where people have actually moved towards a motorcycle to bully them because the lights were so strong. And so what I recommend is what I'm wearing. देखा सर मैंने। So this is called a highlight jacket, and our group is called Rots MC. बिल्कुल। And if you see at the back, सर ये इंस्टाग्राम पे होगा? Yes, it's on Instagram. तो गाइज ये ग्रुप मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा, आप इस ग्रुप को फॉलो करिए और सर को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इवन मैंने भी सर से बहुत कुछ सीखा इतने कम टाइम के अंदर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ को लेके। ये जो जैकेट है ये मैंने डिजाइन करी है ओवर अबाउट 20 डेज। ओके। एंड दिस डिजाइन टुक प्लेस बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द रोड। सो आई हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बिटवीन 2 poles, electrical poles, the distance is 50 meters. So we have actually sat and measured that at what distance can you see this jacket. So in daytime the range of this jacket sighting is almost 3 kilometers on a straight road. क्या बात है सर। And in fog and low visibility, if you notice the members here, they all are reflector, and the range of this one is close to a 1 kilometer. So not only do you have your rear lights, when you're wearing this, it also shines out. तो ये बहुत हेल्प करता है मतलब। So and the second thing is the cloth that we have used in this one also repels rain. Okay. So when you get your raindrops, your chest and your upper thigh doesn't get wet because the way you're sitting, the rain bounces off this. So this is a very important safety equipment. I don't call it fashion, I call it safety equipment. It's exactly. एंड और इस मोटरसाइकिल में मैंने ये मोटरसाइकिल सिंगल सीट में आता है। हाँ, ये आपने ड्यूल आई पुट अ ड्यूल सीट। हाँ, इसमें हैमॉक का सीट लगा हुआ है, ये काफी एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 65,000 का सीट है आई गेस। दैट्स राइट।
and then I सीसी put बार a लगा हुआ है। backrest and saddle bags. हाँ सैडल बैग ये भी So हार्ले का लगाया ओरिजिनल है। because I always have my clothes and other things in this for my ride. So yeah, and my partner, she also rides with me. ओके She's out of the 3 ladies in India who has a pillion mileage patch. क्या बात She's है। done 10,000 kilometers on it. वेरी गुड सर। And then what I suggest to people and what I say to people is please stop modifying your motorcycles. ओके Motorcycles are designed by people who have given it a lot of thought. A lot of computer graphics have been used to various regimes of the engine, the braking, everything. So the moment you start making a motorcycle heavy, so your braking goes down, your maneuverability goes down, your bike becomes less nimble. A lot of people put big headers at the back. They put very heavy bags. So the bike, this motorcycle as such is a very heavy motorcycle. It's unlike motorcycles that we have been riding in India earlier, like bullets and all that. So this motorcycle is almost 330 kilos. So anything you keep putting on top of this, it starts creating a safety hazard. बिल्कुल सर। Because your stopping power goes down, your maneuverability and your on the road goes down. And the thing is that you should keep the bike as close to the manufacturer as you should. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बाइक 1,25,000 चल चुका है, तो जनरली जितनी भी मैंने प्रियॉन के साथ जैसे मैं डील करता हूँ तो उसके अंदर मैक्सिमम 60,000 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर चला जो बाइक होता है ना सर, इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है लोगों की। आपने ऐसा किस तरीके से इस बाइक को मेंटेन किया है कि इतनी बाइक चलने के बावजूद भी आज तक आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई इस बाइक के अंदर? मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस बाइक के अंदर द ओनली thing that I have done is I have serviced this motorcycle on time. Okay. And I have never raved this bike. Okay. जैसे लोग होते हैं वो बाइक्स को बहुत हाई पावर रिजीम में ले जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन, बहुत ज्यादा ब्रेकिंग, बीच बीच में उसको चलाना। तो इसको मैंने बड़े एक तरह से अगर मैं वर्ड यूज करूं तमीज से चलाया कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी इसको बड़ा स्लो चलाया है या 80-90 किलोमीटर पे। We also ride at good speeds on the highway. Okay. But thing is, I've never been rash with the handling of the motorcycle. और आप इन मोटरसाइकिल्स को जब आप इनको सर्विस टाइम पे करा लेते हैं, सर्विसिंग से जो मेरा मतलब है इसके सारे नट बोल्ट्स, इसके सारे ऑयलिंग, जो 7 लीटर इसमें ऑयल डलता है, सारा इसका ऑयल ड्रेन करके, इसके ऑयल फिल्टर्स चेंज करके, सो उससे क्या होता है कि आपकी बाइक का जो इंजन है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और जैसे ही आप जब इसका एक टेक्निक जो मैं सबको सिखाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी सुपर बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं, यू मस्ट स्टार्ट इट एंड पुट इट ऑन आरपीएम। एंड आपके जो मैनुअल होता है बाइक का अपना, उस में आपके आइडलिंग आरपीएम लिखी होती है। हाँ बिल्कुल लिखी होती है सर। तो बाइक को आपको स्टार्ट करके उसका आरपीएम और मीटर ऑन करके उसको छोड़ देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अपना इस आरपीएम से आपको जब तक वो आइडलिंग आरपीएम पे नहीं आता उसको आपको चलाना नहीं चाहिए। स्टार्ट करके छोड़ दो। मतलब हार्ले रेकमेंड सर 3 मिनट कि 3 मिनट तक आप बाइक स्टार्ट करके छोड़ो। Actually that is a very wrong figure what people have. Okay. Idling in various engines can be different. Like for example, in a Harley, it takes you about 1 minute and 40 seconds to come down to 830, 840, which is the idling RPM. The Japanese bikes, they take approximately the same time. Same time. So you have to, and RPM coming to idling also depends on what temperature of the day you are in. For example, if in winters it will take longer because the oil takes longer time to heat up. In summers it comes a little faster. But generally, to make it a very uniform thing, please start your motorcycle and leave it on for 2 minutes. बिल्कुल सर। When you start, nothing will go wrong in your motorcycles ever. Second thing is, the moment you get up on your motorcycle, the first thing is, as you put the gear and you roll the motorcycle for about like 5-10 feet, always use your front rear brake, front brake to check the condition of the brake, whether the motorcycle is holding on. Okay. A lot of people have a tendency of going on their motorcycles very fast as they get up on the motorcycle. हाँ वो जनरली होता है सर। हाँ वो होता है। उसके साथ क्या होता है कि आपका एक तो इंजन का जो पैरामीटर्स हैं वो अभी स्टेबलाइज नहीं हुए होते।
और आप एकदम इतनी हीट क्रिएट कर देते हैं इंजन में, दैट स्टार्ट्स बर्निंग द पिस्टन रिंग्स. बिल्कुल सर. सो दैट एंड देन यू व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैबिचुअली, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें नॉकिंग साउंड आ जाएगा, उसमें टक 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 टक. नेचुरल है सर हार्ले में वो. हाँ, तो वो नहीं आना चाहिए, और उसके लिए ये टेक्निक इज द बेस्ट. बिल्कुल बेस्ट ही है. देन ऑलवेज मेक श्योर, जैसे ये डिपस्टिक है यहाँ पे, तो टाइम एंड अगेन यू मस्ट ओपन योर डिपस्टिक, पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड चेक विस्कोसिटी कैसे है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, so, वो थोड़ा हार्ड होगा सर, वो प्लास्टिक आई गेस. हाँ, नहीं. अच्छा. तो अगर आप इस ऑयल को अगर एक ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं और इसको आप इस तरह से चेक करते हैं, ये देखिए अभी ये जो ग्रिप बन रहा है इस ऑयल के अंदर, बिल्कुल बन रहा है सर. मींस इट्स विस्कोसिटी इज एब्सोल्युटली फाइन. ओके. कई ऑयल्स होते हैं जैसे ये छोड़ रहा है, हाँ, तो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखिए आप नहीं छोड़ रहा है, ये वायर बन रही है. हाँ, बिल्कुल. सो दैट मींस इट्स विस्कोसिटी इज फाइन. ओके. सो दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग योर ऑयल. एंड मोटरसाइक्लिंग basically is all about the maintenance and the riding technique. If your riding technique is correct, nothing goes wrong in these motorcycles. सर ये सब कुछ समझ में आ गया, मेरी हर एक चीज, मेरे आधे डाउट्स तो मेरे वैसे ही क्लियर हो गए. मैं क्वेश्चन जो पूछने वाला था अपने बिना पूछे ही क्लियर कर दिए. बट फिर भी सर एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, जैसे कि इतना किलोमीटर चलने के बाद बाइक के अंदर मेंटेनेंस को लेके कोई मेजर एक्सपेंस अभी तक हुआ? मैंने आज तक इस बाइक को हाथ भी नहीं लगवाया, बिकॉज़ अच्छा. इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमने इसमें सारा इंडिया कर दिया है. और अपना वी हैव गॉन फ्रॉम साउथ, नॉर्थ साउथ, वी हैव डन एंटायर वेस्ट. आई हैव बीन टू गोवा 4 टाइम्स ऑन दिस. ओके. वी हैव डन कन्याकुमारी, लद्दाख, एंड अभी हम पिछले हफ्ते 4 दिन में वी हैव डन उज्जैन टेम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बेलवान एंड बैक, 2300 kilometers in 4 days. So if your motorcycle is maintained and if your motorcycle is properly driven or ridden, and you are not harsh on your controls, believe me, nothing goes wrong in them. And also a lot of people keep their motorcycles dirty. राइड करके लाए, उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो होता क्या है कि हल्के हल्के फिल्टर्स में वो डस्ट एक्यूमुलेशन शुरू होती है. आपके जो फ्रंट डिस्क है उसके अंदर शुरू होती है, और आपने देखा होगा डिस्क के अंदर कई बार ऐसे लाइंस बन जाती हैं. बिल्कुल बन जाती है सर. तो आज तक आपने इसके डिस्क भी चेंज नहीं किया? नहीं. जैसे कि मैं इसकी कंडीशन देख रहा हूँ सर, कि सर क्या बात है, तो बहुत अभी भी मतलब बिल्कुल फाइन कंडीशन में है. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ व्हाट आई डू इज, इफ यू कैन show them people this, that is your engine, that is your brake cylinder, वो वहाँ पे. तो मैं जब भी बाइक धोता हूँ तो ये पार्ट मैं खुद धोता हूँ. अच्छा, ये आप खुद? तो मैं यहाँ पे पानी आगे पीछे मारता हूँ. अच्छा. उससे क्या होता है कि जितनी उसके, बिकॉज बाइक जो वॉश करता है वो इसको ऐसे ऐसे करके, हाँ, वो तो सर साबुन लगा के छोड़ देता है. लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये इंजन के ये ब्रेक्स को धोना यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको हटाना होता है, बिकॉज वो डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में जो फाइन पार्टिकल्स आते हैं, और जब आप दबाते हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते और वैसे भी नहीं इसमें देख पाएंगे, वो हल्की हल्की डिस्क के ऊपर लाइंस बनानी शुरू कर देते हैं. और उससे क्या होता है कि जो आप नए ब्रेक शूज चेंज करते हैं, तो अगर आपके ऐसे उस पे लाइंस हैं, तो जैसे ब्रेक शू लगता है तो ब्रेक शू भी उसकी शेप लेनी शुरू करता है, और फिर वो डिस्क हल्की हल्की उसी शेप में घसनी शुरू हो जाती है, वो फिर चेंज करनी पड़ती है. तो हम सरप्राइज सर कि इतनी किलोमीटर चल गई आपने डिस्क भी चेंज नहीं किया. और बेसिकली सर जिसमें अभी तक अब जो आपका एक्सपेंस है वो टायर का एक्सपेंस कह सकते हैं? मेरा ये जो टायर है, दिस इज माय 6th टायर. ओके, 6 टायर. हाँ, जो इसका पिछला टायर है वो नॉर्मली 22 to 24,000 किलोमीटर चलता है. ओके. और जो फ्रंट टायर है, दिस वाज माय 3rd टायर. ओके. माय फर्स्ट टायर वाज 47,000 किलोमीटर. क्या बात है सर. जो हार्ले भी सोच रहा था कि ये मैं भी सोच रहा हूँ सर कैसे हो गया पॉसिबल. सो माय 2nd टायर वाज 43,000 किलोमीटर. और सर ये कितने का पेयर आते हैं मतलब? अच्छा, पहले तो ये टायर्स जो थे जब हमने बाइक ली थी, तो ये आता था 24,000 का, और ये आता था 21,000 का. और अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए सर. अब ये जो पेयर है वो अभी आता है 1 लाख रुपए का. बताओ सर, 1 लाख वाइट वॉल टायर, और इतना सोचा नहीं था इतना एक्सपेंस हो जाएगा. एक क्वेश्चन हो सर, हार्ले में बैटरी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है. जी. सब लोग बोलते हैं बैटरी ड्रेन होता है, तो उस चीज के लिए क्या सोल्यूशन है सर उस चीज का? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा. सी, ऑल द इंडियन कार्स दैट वी आर यूज्ड टू, the Japanese technology, the British technology, what they did was they took their positive and they put it on the battery, and they put the negative to the earth of the car. In the American system, it's the other way around. Okay.
So they put their negative in the main and the positive goes to the body of the vehicle. अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है सर? उससे ये फर्क पड़ता है कि ये अगर आप इधर आए तो ये जो इसका स्टैंड है ये मेटालिक है। बिल्कुल है सर। So what happens is the battery is here. हाँ। So उसके साथ ये यहाँ से अर्थ में बैटरी को ड्रेन करता है। तो अगर आप ज्यादा देर इसको खड़ा करना है तो कोई ऐसी चीज इसके नीचे, मतलब कोई भी कुछ इसमें या फिर कोई रबड़ का कोई पार्टिकल हो, इसके नीचे से इसमें डाल दीजिए। हाँ। ऐसे तो उसके बाद इसका स्टैंड इसके ऊपर आ जाता है जैसे हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका कनेक्शन कट जाता है। बिल्कुल। तो नॉर्मली अगर आप हार्ले को 20 या 22 दिन ना स्टार्ट करें तो इसकी बैटरी बहुत लो स्टार्ट देगी, मतलब टाइम लगाती है, वो चार्ज करना ही पड़ेगा आपको, हो सकता है स्टार्ट भी ना हो। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ सर बैटरी को लेके? नेवर, बिकॉज अगर मैं इसको 5 दिन से ज्यादा या हफ्ते से ज्यादा इसको मैं खड़ा करता हूँ तो मेरे पास इसके लिए मैंने एक वुडन प्लैंक्स लगा रखे हैं। अच्छा। रखे हुए हैं तो मैं 2 वुडन प्लैंक्स इसके स्टैंड के नीचे लगा के फिर स्टैंड लगाता हूँ। एंड 2 मेरी बाइक हमेशा बिल्डिंग में नीचे वो उसमें खड़ी होती है अपना बेसमेंट पे, बट मैं फिर भी इसको कवर करता हूँ। रीजन इज बिकॉज इवन इन द बेसमेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ डस्ट, बग्स दे गो इनसाइड। होता क्या है कि इसमें स्पाइडर्स, कॉकरोचेस वो बाइक्स के इधर उधर चल जाते हैं एंड दे मेक लिटिल कॉबवेब्स, ये जो होता है जाला बना देते हैं। उससे भी कई बार बाइक्स के अंदर से देयर इज अ ड्रेन ऑफ बैटरी, सो यू मस्ट कवर योर मोटरसाइकिल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू दैट। And the Japanese bikes don't have this problem. The German bikes don't have this problem. It's only the American motorcycles which have that. So Harley and Indian, they both have this problem. So अगर आपने उसको long term time park करना है, for example 10 days, 15 days, तो उसका stand के नीचे you must put in some plastic or wood so that that circuit is broken. तो उस चीज से बहुत हेल्प मिलता है। हाँ, उससे बैटरी ड्रेन का जो लेवल है या रेट ऑफ ड्रेन ऑफ बैटरी वो कम हो जाता है। सर हार्ले को लेके ना, मेंटेनेंस को लेके लोग बहुत डरते हैं कि यार बहुत एक्सपेंसिव है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रॉपरली राइड करते हैं, तमीज से बाइक चलाते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। और इसके मैं एक और चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा हार्ले के लिए। हार्ले इज वन मोटरसाइकिल जिसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लोगों की टेंडेंसी रही है जो वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो करोल बाग जाके उसमें लाइटें लगवा के ले आते हैं। हाँ सर, मैं भी परेशान हूँ उस चीज से सर बहुत ज्यादा। तो 2 कारण, एक तो पहले ये लाइटें चाइनीज होती हैं, इनके जो ड्रेन है, जो इसका जो रेजिस्टेंस है या जो इसके इलेक्ट्रिकल ये स्पेक्स हैं वो हमें नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम सर। ठीक है, तो वो आके वो रंग बिरंगा सा मोटरसाइकिल को बना देते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं जब लगाओ। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, अनलाइक हार्ले क्या करता है, वो कभी तार नहीं काटता। अगर आप वही लाइट हार्ले कपलर टू कपलर रहता है, वो तार नहीं काटेंगे। वो क्या करेंगे, कनेक्टर में निकाल के उसमें एक स्विच लगा के उसका एक पॉइंट वो कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिवली वो कनेक्टर के साथ उसको डाल के उसमें स्लीव डाल के उसको मेल्ट कर देते हैं ताकि उसमें कोई पानी ना जाए। बाहर के जो मैकेनिक्स हैं वो क्या करते हैं, वो तार को काटते हैं, तो एक और तार डाली उसके अंदर मोड़ा और उस पर टेप लगा दी, विच इज द वर्स्ट थिंग टू डू। वो ये सबसे खराब बात इसलिए है क्योंकि आप जैसे ही उसको तार से बांधते हैं, उससे टेप से बांधते हैं, और जैसी हीटिंग होती है वो गम छोड़ देती है। और जो अब ये बाइक्स चलती हैं, पानी में चल रही हैं, कभी धुल रही हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो उसमें चल जाता है एंड इवेंचुअली इट ड्रेन्स द बैटरी एंड इट कैन इवन शॉर्ट सर्किट। देयर वाज अ इंसिडेंट ऑन अ हार्ले where the bike burnt because of electrical short circuit and उसमें यही था क्योंकि उसने बाहर से तारें उसकी छिड़वा दी थी। तो गाइस अननेसेसरी किसी भी मैकेनिक से बाइक के अंदर एक्सेसरी मत इंस्टॉल कराइए। तो जेन्युइन पर्सन है जो जेन्युइन काम करता है उसी से आप इंस्टॉल कराइए ताकि बाइक में आपके इशू ना फेल हो, मतलब प्रॉब्लम हो। एब्सोल्युटली। और क्या होता है कि आप करोल बाग में इनिशियली जो आपका खर्चा आता है वो शायद कम आए, लेकिन उस खर्चे को रिपेयर कराने का जो आपका वापस जाके जब आप हार्ले में कराएंगे तो आपका डबल खर्चा आएगा। बिकॉज पहले तो वो सारा सर्किटरी को समझेगा कि उसने काटा कहाँ है, फिर वो अगर हुआ तो वो उसको रिपेयर करेगा, नहीं तो वो पूरी हार्नेस चेंज पूरी हार्नेस, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। हार्नेस कैन कॉस्ट यू क्लोज टू 35-40,000 रुपीस एटलीस्ट, सो इट इज नॉट वर्थ इट। अगर आपने कोई एक्सेसरी ली भी है तो आप पहले अपने हार्ले के मैकेनिक से बात करिए कि मैं ये ले रहा हूँ, ये इसके है, उसको व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेजिए। अगर वो इस पे इंस्टॉल हो सकती है तो आप लेके आके हार्ले से इंस्टॉल कराइए, बिकॉज ये मैकेनिक्स
बिल्कुल करेक्टली उसको इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल। दिस इज माय रिकमेंडेशन। एंड आपके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट और करना बिल्कुल चाहता हूँ सारे सुपर बाइकर्स को और जो बड़े हैं, लॉट ऑफ दीज पीपल दे पुट दीज वेरी फैंसी लाइट्स एट द बैक, रियर सर लगा लेते हैं, डायोड्स लगा देंगे, वो फ्लैशिंग लाइट्स, क्लियर वाटर की लाइट आती है, that can cause major accidents। सर उसमें दिखता नहीं है पीछे? दिखता तो is one part of it। अच्छा। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आप जब बैठे होते हैं तो वो आपकी जैसी बाइक आपसे डिस्टेंस लेती है वो आपकी आई लेवल पे आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। So if a diode is flashing on your eye, so what it does, it creates a distraction। आप उस बाइक को देखने लग जाते हो, आसपास देखना बंद कर देते हो, because it's a human tendency। So जितनी भी लाइट्स लगाएं, एक तो लो लगाएं, ताकि these lights are, for example, if I put this on, these lights are basically to tell the people at a distance that, you know, this is my motorcycle. These are genuine parts. Genuine parts. Right? And if you even put these blinkers on, so this is only to show that at, low light, कि ये बाइक आगे चल रही है, मेरे से थोड़ा दूर रहना या ध्यान रखना। समझ गया। इसका सिर्फ रीजन ये होता है। लेकिन अगर आप इतनी फैंसी लाइट्स लगा दो, it can actually distract a driver behind you। It can actually cause an accident। बिल्कुल सर। So this is my humble request that please don't put too much lighting at the back, because it can really distract somebody। लोग इसका क्रिसमस ट्री बना देते हैं। बिल्कुल बना देते हैं सर। तो सर ये बाइक आपने प्रॉपर्ली हेरिटेज में कन्वर्ट कर रखी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। क्रूजर में, नॉट हेरिटेज। अच्छा। हेरिटेज में क्या है कि एप हैंडल बार थोड़ा रहता है, मिनी बीच बार। हाँ। हेरिटेज हैज अ एप लाइक दिस, एंड हेरिटेज हैज अ क्रूज कंट्रोल। इसमें मैंने क्रूज कंट्रोल नहीं लगाया। अच्छा। तो मैंने बट लगाना चाहिए सर, वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत वर्थ करता है। मैंने 800 रुपए का Amazon से मैनुअल क्रूज कंट्रोल लगाया। अच्छा। अब आप पूछेंगे कैसे चलता है? इसको कहते हैं थ्रॉटल होल्ड। ये 800 रुपए का आता है। ये इस पे रबर लगता है थ्रॉटल पे। मैं देख पा रहा हूँ। तो इस पे आप इसको ऐसे लगा दीजिए, और जब आप थ्रॉटल को आप चला रहे हो तो इसको घुमा के यहाँ रख दो, तो ये थ्रॉटल को वहीं होल्ड कर लेता है। अच्छा, बिकॉज़ ऑफ लीवर की वजह से। और जब आपने इसको स्लो करना है तो आप इसको बंद करो, वो ऐसे ऊपर आता है। अच्छा। तो ये जो तो रिस्की नहीं है सर ये? This is not risky at all। Why? Because I always have a control on my throttle। So ये होता है कि अगर मैंने सपोजिंग चला रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पे होल्ड करा दिया, तो थोड़ी देर हाथ स्ट्रेच कर लिया चलाते हुए समथिंग, and then I'm back on my throttle। जो क्रूज कंट्रोल होता है on long distances, what I've realized that lot of people have a tendency of putting a cruise control and start playing with their telephones। हाँ सर, कह सकते हो, बिकॉज़ ऑफ म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक लगा रहे हैं ये वो, तो उनका क्या होता है कि उनको लगता है मोटरसाइकिल अपने आप चली जा रहा है लाइक अ कार। लेकिन आगे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन even the best of the highways can give you the worst of surprises। अच्छा। हाँ, जैसे KMP है, जब आप KMP से आ रहे होते हैं दिल्ली से वापस, उसके अंदर there are little humps like this जो आपको नहीं दिखते। आप अगर 100-110 पे चला रहे हो, जो उसकी स्पीड लिमिट 120 है, तो क्या होता है बाइक आपकी चल रही है, सडनली इट विल बाउंस। वो तो बहुत रिस्की है सर। हाँ, वो बहुत रिस्की हो जाता है। और अगर आपका हाथ या माइंड कहीं और है क्रूज कंट्रोल लगा के, तो देन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सडनली वेकिंग अप टू अ शॉक। तो मैंने ये प्रेफर करा है, और इसी को मैंने 1,25,000 किलोमीटर चलाया। बिल्कुल सर। तो इस बाइक को लेने के बाद कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ सर अभी तक? जीरो रिग्रेट। अच्छा। और मेरा एक छोटा सा रिग्रेट ये है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं चलानी चाहिए। सो एंड व्हाट आई वांट टू टेल थ्रू योर चैनल, दैट बाइकिंग इज a very important thing in life as far as I'm concerned। और ये जो रॉड सेमसी जो ग्रुप है, इसके 6 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स। ओके। वी डू आवर ओन मर्चेंडाइज। ये शूज भी अगर आप देखें तो ऑल दी शूज आर आवर्स, वी हैव मेड इट आवरसेल्व्स। ये रॉड सेमसी। ये तो अच्छा, ये पूरे हाई बूट है सर? हाँ, दिस इज बूट्स एंड आई हैव डिजाइन्ड दिस माय सेल्फ विद द सोल, and it's a very high grip sole। and so we, और किसी को चाहिए हो तो सर ये कैसे कांटेक्ट करे आपको? on Rod Semsi, or you can call me up at 98-106 05060। It's the easiest number in the world। It's 98-1060-5060। 10-60-50-60। मैंने भी सर ये जब नंबर सेव किया था तो मेरे को भी लगा बड़ा अच्छा नंबर है सर का। तो सर इस बाइक के बाद कोई और बाइक लेना चाहोगे सर? मेरा अभी बीच में 6 महीने पहले मैं GS 1250 लेने जा रहा था। अच्छा। BMW। But then I've thought that I'll make some sort of a record on this motorcycle itself। Okay। I'm going to ride this bike all my life। I will not buy another bike now। अच्छा। And जब इसकी मेंटेनेंस आएगी तो इसमें जो मेंटेनेंस आती है मोस्टली इसका क्लच, जितना मर्जी आप चला लो, एंड ऑफ द डे वो लेदर का बना होता है। बिल्कुल तो सर। वो लेदर घस जाता है।
तो इसका एक क्लच चेंज होगा जब भी ये मांगेगी, और इसके इंजन में थोड़ा काम होगा, उसकी पिस्टन्स के नए रिंग्स डालेंगे। बट आई विल नॉट चेंज दिस मोटरसाइकिल फॉर 2 reasons. One, because I'm absolutely in love with this, and इसने मेरे को हर सिचुएशन से निकाला है। क्या बात है और ले में आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। इसने 4 फुट पानी के अंदर हम थे, जहाँ पे एडीवीज रुकी हुई थी, ये हिमालयंस, जीएसटी, वो सारे खड़े थे 40 राइडर्स, और हम सिर्फ 3 राइडर्स जो हार्ले पे थे। मैं था, उत्सव था, और शिवम था। उसके पास फैट बॉय थी 2017, और शिवम के पास थी फैट स्पीड बॉब 2019। सिर्फ हम 3 उसको क्रॉस करके गए थे, बाकी एडीवीज भी वहाँ खड़े थे। सर ऐसा कैसे सर? हाउ पॉसिबल? I'll tell you the reason why. इस मोटरसाइकिल के अंदर the torque is very high. बिल्कुल सर। Only problem with this motorcycle is it's low. हमने जब से इसमें शीट लगाई है नीचे, जो ये शीट लगी है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा उससे सर। सो उससे क्या है कि बड़े से बड़ा पत्थर जब बाइक उसके ऊपर जाती है, तो वो शीट के साथ वो सीसॉ बन जाता है, यहाँ उसके ऊपर से ग्लाइड करके निकल जाती है। एग्जैक्टली सर। अच्छा, और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा टॉर्क है इस बाइक के अंदर, दैट इट जस्ट पुशेस यू थ्रू आउट ऑफ एनी सिचुएशन। एंड बाकी जो एडीवीज हैं, कईयों के रिम्स टूट गए, कईयों के वो जीएस के शाफ्ट्स टूट गए, एंड अपना क्या कहते हैं, बाकी डैमेजेस हुए। अच्छा। लेकिन हम अपना इस बाइक को चला रहे हैं तब से, एंड इट्स किसी से छुपा नहीं है, हम ये करके आए हैं। सारा हमारे यूट्यूब चैनल भी है, अच्छा, जिसपे ये सारा कुछ है। सो लाइक आई सेड, इफ यू नो योर मोटरसाइकिल एंड इफ यू keep it maintaining, keep the maintenance schedule, इसमें कुछ खराब नहीं होता। दूसरी बात क्या है, रॉड्स एमसी में जितने भी नए लोग आते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने, मैं सबसे पहले तो उनकी इंटरव्यू लेता हूँ। अच्छा, ऐसा भी है सर? Yes. And some people, don't like that, but I do not take anybody in the Mostly group. people don't like that, sir. No, the reason for that is because I want to know the background and the mental health of a person who's riding a motorcycle. इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, या जैसे भी है, कि मोटरसाइकिल पे बैठे, स्टार्ट किया, हेलमेट पहनी और चल पड़े। मोटरसाइकिल इज नॉट just about doing that. Motorcycling is a science. It is something which you need to understand. ये बहुत deep है। अब कई लोगों को मैंने देखा है, और आपको मैं इस हैरानगी से बताऊंगा कि मैंने 3 एक्सीडेंट्स लाइव देखे हैं। अच्छा। और स्ट्रेट रोड पे देखे हैं, मतलब रोड ऐसे हल्का सा कर्व कर रही है, राइडर चला रहा है और वो मोटरसाइकिल मोड़ नहीं सका, वो सीधा फुटपाथ में गया और गिर गया। बिल्कुल। अच्छा, उस मोटरसाइकिल राइडर से जब मेरी बात हुई, उसको हमने फर्स्ट एड दिया। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, ये स्टोरी सुनाने से पहले, जितने भी रॉड्स एमसी में राइडर्स हैं, उन्होंने मिडियोर हॉस्पिटल से फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम करा हुआ है। अच्छा। All riders in Rods MC have a certificate that they have been trained for first aid. Okay, sounds good, sir. So we can do the initial first aid for everybody. तो हमने जब इसको फर्स्ट एड दिया और हमने फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके थोड़ा सा चोट लगा था, वो ठीक हो गया, ज्यादा चोट नहीं लगा। Then I realized that he could not turn his motorcycle. The reason was because he did not know counter steering. Exactly. So a lot of people just think कि मोटरसाइकिल बैठे उसको लीन करा। मैं आपको इस मोटरसाइकिल को पूरा लीन करके फिर भी सीधा चला के दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल लीन करने से नहीं मुड़ता, मोटरसाइकिल काउंटर स्टेयर से मुड़ता है। बिल्कुल सर। So लोगों को ऐसी छोटी-छोटी बातें बहुत सीखनी है, तो मैं लोगों को यहाँ ट्रेन भी करता हूँ। अच्छा। तो जो मेरे साथ जाते हैं और संडे राइड्स पे, उनको 360 टर्न्स काटना, कैसे बिना पैर लगाए आप टर्न काटते हैं, बिकॉज उसमें बाइक का सबसे ज्यादा बैलेंस आता है। और एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से टू प्योर राइडर्स, राइडिंग इज अ प्लेजर, इट इज नॉट अ पनिशमेंट। बिल्कुल सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने एक्सप्लोर की और बहुत मजा आया। बातें ऐसी सीख ली जो मेरी लाइफ के अंदर जरूर मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा और उनको हेल्प करेगी। और मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि सर से आप सीख सकते हो सर को। तो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको शूट करके। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर सर। थैंक यू।